People don't understand the power of communication. New education policy says up to class 5, teach them in their mother tongue, teach them in Hindi, teach them in the regional language. Okay, very nice. Why not? But from class 6, when you introduce English as a language, do you have good teachers? What is special about this class? Before me, did you not have a teacher of English? You did. All of you had teachers of English. Everybody studied at school, in tuition. Were you growing as fast as now? Did you learn as fast as you're learning now? What is different this time? Simple. This time, you have a teacher who talks to you in English. Of course, sometimes it's difficult. I agree. But I'm not very strict. I'm friendly. I understand that you are in trouble. You find it difficult. It's challenging. I understand. And I am ready to acknowledge it, understand it. Did you take my permission? Why did you take the book without my permission? What does discipline say? You should take the teacher's permission before you pick up the book, or you shouldn't. You should take the permission first. You shouldn't take the permission. You can pick up the book without permission. Is it all right? In which school they have taught you that it is all right to pick up the book without the teacher's permission? Is that your book at all? Tell me. Do you think it is all right for him to pick up the book without permission? Nandini, Divya, Sandhya, Mani, Prince, Saad, he should pick up the book without permission? He shouldn't. He should take permission first. Sir, can I take this book? And then if I say yes, then he should. What do you think? Speak in Hindi. If you're not comfortable in English, speak Hindi and tell me, what do you think? What's your opinion? Go ahead. Tell me. What's your opinion? Yeah, please explain. In Hindi, if not in English. But don't keep quiet. Tell me what you think. Go ahead, Vishal. Yes, Vishal. I'm waiting for your response. Tell me. Yes. I want to hear your opinion. I want to hear your opinion. So tell me your opinion. Vishal, I would like to hear your opinion. Keeping quiet is not an opinion, okay? You heard me? You understood what I said? You understood what I said? Well, maybe later. You can tell me later what you think about it.
Yesterday, we talked about Rick Wilson and we did some more exercises. Open your books, everyone. Exercise 2 was your homework. Right. How many books do we have? Only one or two or three or more? How many books did you bring? Divya? You brought 2 books only, but there were 3, I guess. And there was 1 book here already. Right. So total 4. I think we can have a book for at least 2 people everywhere. You have a book here. Divya, come and sit with this bhaiya here. Come. He has a book. Okay. So manage together. You guys have a book there. You guys have a book here. Sandhya, you don't have a book. You have a book, right? And at the back, do you have a book there? Please come. Sit here. Saad has a book. Here, beta. Okay. Prince, you have a book. Okay. And Sachin? Oh, I took your book. Sir. I will give you a book today. Hello, Shama. Good evening, sir. Good evening, Shama. Okay. And what about there, Divyanshu and Mono? Do you have a book there? No. Good evening, sir. Good evening. The boys, both the boys are absent. Samir and Good Junaid. evening, sir. Hello, Noor. They both have books. So there is a book here. Pass this book to some people who don't have the book. You don't have a book? You do? You do? Okay. Why don't you share your book with her and she can share her book with her? Yes. Fine. They're here now. One of you can come here. Apostrophe S is both possession and is. Apostrophe S can be both possession and is. Apostrophe S is भी होता है. Apostrophe S possession भी होता है. Now, I gave you an exercise to do. Soon I will arrange books for the hostel. You guys can do the exercises from the book. Okay. Give me 1 or 2 more days. We will print books. Exercise 2, everybody. Page number 9. My name's Juan. My name's Juan. My name is Juan. My name is Juan. Number 2, my sister isn't married. My sister's friend, her friend, isn't married. You know, no book? And you? Yeah. Okay. Sonia is Italian. Sonia is Italian. Sonia Gandhi, right? Is Italian. And she's a teacher. She is a teacher. Is. Number 4 is. Her brother's wife isn't English. Brother's wife. Possession. Brother's wife isn't English. Isn't English means beta? Her brother's wife isn't English means? वही ये मतलब अंग्रेज नहीं है. English नहीं जानती. Is that right? Her brother's wife isn't English. उसके भाई की बीवी English नहीं जानती. सही है? नहीं, सही नहीं है. That's not right. तो क्या हुआ? इंग्लैंड से नहीं है. अंग्रेज नहीं है. इंग्लिश नहीं है. Her brother's wife isn't English. English refers to 2 things. One, the language, and it is the nationality. Nationality means you are from India. India is the name of your country. And you are Indian, right? America is the name of the country. And the people from America are American. America.
Germany is the name of the country, and the people from Germany are called German. German people, right? German. Similarly, China is the name of the country, but the people from China are called Chinese people. Chinese. All right? So, England is the name of the country, and people from England are called English people. Yes. I want to marry an English girl. I want to marry an English girl. An English girl means a girl from England. Do you want to marry an English girl? Do you want to marry an English girl? No? Divyanshu, do you want to marry an English girl? No, you don't want to marry an English girl. मोनू बेवकूफ हो तुम. हाँ बोलना चाहिए था. दिव्यांशु हाँ बोलना चाहिए था. पता है कैसे? पैसे बचते. If you marry an English girl, then you can learn English with her. She can teach you English. You don't need to pay money to Vinay Shankar Soni. First benefit. Second benefit. If you marry an English girl, your children will also speak English without learning English. So, आपने ना बोल दिया दो फायदे को. You said no to two big advantages, right? Prince, would you like to marry an English girl? Do you want to marry an English girl? Yes, he wants to marry an English girl. Very good. Saad? Yeah, he also wants to marry an English girl. मैंने फायदे जो बता दिए, अब वो फायदे को ना कैसे बोले वो? घर वाले चढ़ने नहीं देंगे. Okay, if you marry an English girl. पैसे के चक्कर में घर वालों से हाथ धो दिए तुम. चलो. Her brother's wife isn't English. उसके भाई की पत्नी इंग्लैंड की नहीं है. Number 6, my dear students. Okay, English music means beta? English music means music from England. English culture means beta? Culture from England. An English footballer means beta? A footballer from England. An English footballer. Beckham is an English footballer. Have you heard the name Beckham? David Beckham? No? Okay. David Beckham is an English footballer. Yes. It means he's a footballer from now he's retired. Beckham is now retired. Yeah. His wife is very popular, very famous. Just like Virat Kohli's wife is very famous. What is his wife's name? Anushka Sharma. Right? She's very famous in India and outside India because she is successful actress. Right. So, number 6, beta. My brother's children are beautiful. My brother's children are beautiful. Who's beautiful? My brother's children are beautiful. दिव्यांशु दिमाग में जा रहा है बेटा ये सब? समझ में आ जाता है? बोल लीजिए, घबराइए मत. आप बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं क्लास में. ओके, नर्वस मत रहिए. आप बहुत तेज दिमाग के हैं. धीरे धीरे आपके जो झिझक है ना वो चली जाएगी. ओके, लिख पढ़िए. माई ब्रदर चिल्ड्रन आर ब्यूटिफुल. पहले भाई इमेजिन करिए, फिर भाई की शादी होगी और भाई के बच्चे होंगे, तब आप ये लाइन बोलना. क्या बोलना? माई ब्रदर चिल्ड्रन आर ब्यूटिफुल. सुंदर ना हुए तो कैसे बोलेंगे? My brother's children are not beautiful. Any problems? Okay. Can you guys give me one sentence with an apostrophe S? A sentence with an apostrophe S?
I like Monu's eyes. I like Monu's eyes. हिंदी, मुझे मोनू की आंखें बड़ी आंखें पसंद है। पसंद है। क्या पसंद है, तोते की तरह करते रहते हो। मुझे मोनू की आंखें अच्छी लगती हैं। क्या जरूरी लाइक बोला तो पसंद वर्ड के बगैर नहीं होगा? फिर कमला पसंद का इंग्लिश करेंगे, कमला लाइक। ओके, बैड जोक। You know what Kamla Pasand is, right? It's a very bad thing. Okay. Yeah, it is tobacco. Kamla Pasand is the name of a brand of tobacco. Yeah, it's a tobacco brand. Kamla like. I like Monu's eyes. इसमें apostrophe सा है ना? मुझे मोनू की आंखें अच्छी लगती हैं। और बोलिए। टोबैको मीन्स Tobacco means तंबाकू। गुटखा। Your sister's poems are beautiful. Very good. Which sister writes poems? First sister, Minu Sakshi, writes poems. Minu's poems are very nice. Okay, very good. क्या सुना? My sister's poems are very good. आप लोग भी एक ट्राई करना जिसमें apostrophe s आ जाए, possession के लिए आ जाए तो और मस्त हो जाए। हम्म, बोल लो बेटा। यस फरहान। बेटा इसमें apostrophe आया, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैं चाह रहा हूं पोजेशन के लिए आ जाए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, पोजेशन के लिए। हम्म अ, इसमें पोजेशन नहीं है बेटा, अभी समझाता हूं। मैंने कहा आई लाइक मोनूज आईज, तो मोनू अपॉस्ट्रोफी एस, मोनू की आंखें, मोनूज आईज। फिर मैंने कहा मेरी, आपने कहा आपकी बहन की कविताएं, माई सिस्टर्स पोएम्स। तो आप लोग बोलो बेटा। यस प्लीज। विनय सर की बेटी कैसे बोलेंगे? Vinay sir's daughter. Push the door. Push the door. Push. Yes. Welcome. Hey. Sit there. Sit there. Close the door. And you can sit on the chair, Ankita. That's fine. You can sit on the chair. अंकिता का भाई कैसे बोलेंगे? अंकिता's brother. अंकिता's brother. ब्रदर्स। ऋषभ ना, ऋषभ की मम्मी कैसे बोलेंगे? ऋषभ ऋषभ's मदर्स। mother. Rishab's mother. Rishab's mother is my wife's friend. Rishab's mother is my wife's friend. देखो दो दो यूज हो रहा है, दो दो अपस्ट्रफी, मजेदार। ऋषभ's mother, ऋषभ की माँ कैसे बोलते हैं? ऋषभ अपॉस्ट्रफी एस। ऋषभ's mother is my wife's, WIFE apostrophe S, my wife's friend। समझ में आ गई बात? आप लोग भी ऐसे कुछ एग्जांपल दो मुझे जिसमें अपॉस्ट्रफी एस आ जाए। My cousin brother's name is Shahbaz. Cousin brother's name is Shehbaz. Noor's cousin brother's name is Shehbaz. Noor's cousin brother's name, मेरे सेंटेंस में दो आ गए, उसके सेंटेंस में एक ही था। उसने कहा था माय cousin brother's name is शहबाज, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? नूर्स cousin brother's name is शहबाज। नूर के कजन भाई का नाम शहबाज है। तो वी आर लर्निंग हाउ टू यूज अपॉस्ट्रोफी एस, है ना, पोजेशन के लिए। ठीक है, और एग्जाम्पल दे दीजिए। शुभांकर, साद, सचिन, प्रिंस, दिव्यांशु, श्रेया। श्रेया, आप कनेक्ट करके रहिए, ठीक है? आप बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं मेरे से, कनेक्टेड रहिए। ओके, कम ऑन गाइस, गिव मी एन एग्जांपल। योर फ्रेंड्स हाउस इज ब्यूटिफुल। वेरी गुड। साद्स फ्रेंड्स हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल। बहुत अच्छे साद।
यस। कोई जरूरी नहीं सेंटेंस बोलना, आप खाली छोटा सा टुकड़ा भी बोल सकते हैं। माई ब्रदर्स इंग्लिश, माई ब्रदर्स इंग्लिश इज परफेक्ट। मेरे भाई की इंग्लिश परफेक्ट है, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट साजिद। ओके, योर ब्रदर्स इंग्लिश इज वेरी गुड। परफेक्ट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, हिज इंग्लिश इज वेरी गुड। यस, Sajid's English is very good. Now Sajid he has finished the elementary course. He is now doing the pre-intermediate course in the evening at 7. Okay. और बताएं? Sandhya's sister is older than you. Okay. Sandhya's sister is older than you. हाँ, संध्या भी तो तुम्हारी ही बहन है बेवकूफ। लेकिन फिर भी सेंटेंस सही था। लेकिन तुमने जो बात कही बहुत बेवकूफाना बात कही है। ओके, संध्या इनकी बहन है और खुद क्या कह रहे हैं? संध्या की बहन मेरे से बड़ी है। द सेंटेंस वाज फाइन। और बेहतर बोल सकते थे, जैसे बोल सकते थे संध्याज बुक्स आर ओल्ड, ऐसे ही बोल सकते थे। संध्याज बुक्स आर ओल्ड, संध्या की किताबें पुरानी हैं, राइट? बट संध्याज क्लोथ्स आर न्यू, बट हर क्लोथ्स आर न्यू। ओके, और भी कुछ? आपके मामा की पत्नी बहुत सुंदर है। ओके, बहुत अच्छा। माई मामाज वाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। क्या बात है, सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि उनके मामा की पत्नी सुंदर है। गाइस, डू यू थिंक योर मामी इज ब्यूटिफुल? या, वी ऑल थिंक आवर मामी इज ब्यूटिफुल। योर मामाज वाइफ, मामा हैज वाइफ नहीं, मामाज वाइफ, मामा अपोस्ट्रोफी एस। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। योर मामाज वाइफ इज ब्यूटिफुल। इज शी एजुकेटेड टू? इज शी एजुकेटेड टू? वो पढ़ी लिखी भी हैं क्या? इज शी एजुकेटेड टू? नो, शी इजंट एजुकेटेड। ओके, ऑल राइट, बट शी इज ब्यूटिफुल। गुड। दिव्यांशु, your sister's clothes are beautiful. Very good, very nice sentence, Divyanshu. Everybody, Sandhya, uh, dear Vishal, Inzamam, Akansha, Shreya, give me an example. Your example gives me confidence कि हाँ, बात तो समझ में आ रही है। Your sister is beautiful में possession तो नहीं है, किसी का कोई बात तो नहीं हो रहा। अभी सारे एग्जाम्पल्स याद करो। दिव्यांशु ने क्या कहा? माई सिस्टर्स क्लोथ्स आर ब्यूटिफुल। तो दीदी के कपड़े बोला ना उसने, मेरे दीदी के कपड़े सुंदर हैं, राइट? माई सिस्टर्स क्लोथ्स आर ब्यूटिफुल। तो आप तो पोजेशन वाला पोस्टऑफिस नहीं लाए, है ना? श्रेया, बोलो इंजमाम। वेरी गुड। भाई के फोन पे आंख लगी तुम्हारी? हैं? हिज ब्रदर्स फोन इज एक्सपेंसिव। योर ब्रदर्स फोन इज एक्सपेंसिव। Okay. And your phone is not expensive. I can understand. When he's sleeping at night, exchange. Forceful exchange. Exchange offer नहीं होगा ये, ठीक है? All right, guys. Anybody else? Samir, Junaid. Your uncle's daughters are beautiful. Very nice. Uncle's daughters. Hmm. Yes. Samir. Think. Divya. Adnan. Your mother's friends are very nice. Adnan's mother's friends are very nice. अदनान की मम्मी के दोस्त, Adnan's mother's friends are very nice. Very good. हम लोग क्या कर रहे हैं ऋषभ? We are just trying to make sentences where we have apostrophe s for possession. जैसे जैसे मैंने कहा ऋषभ's mother, मतलब ऋषभ की माँ। ऋषभ मदर नहीं, एक गलती क्या कर जाते हैं हम लोग, बोल देते हैं ऋषभ मदर। नहीं, ऋषभ की माँ कैसे बोलेंगे बेटा? ऋषभ's apostrophe s. Okay, Rishab's Mother. mother is my wife's friend.
वाइफ की फ्रेंड, वाइफ फ्रेंड नो, वाइफ्स फ्रेंड, प्लूरल वाइफ नहीं, वाइफ पे अपॉस्ट्रोफी है पोजीशन के लिए, वाइफ्स फ्रेंड। संध्या, विशाल, अमन, come on, anybody else? Sachin, Sachin, have you spoken already? Come on, give me an example. Your brother's new bag is beautiful. Very good sentence, guys. Sachin's brother's new bag is very beautiful. Who has a new bag? Sachin's brother. Sachin's brother has a new bag. Okay. It is very beautiful. Very nice. Good. Good job. जो लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर एक बार और कोशिश करके देखे, शायद हो जाए। कम ऑन। अगर फिर भी ना पड़े, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, तो मैं फिर एक्स्ट्रा हेल्प दूंगा। विशाल, ट्राई। Apostrophe S. I think you can do it. I'll give you an example. Help. हम हेल्प दे देते हैं आपको। बोलना है राहुल के पापा। कैसे बोलेंगे? राहुल्स फादर हो गया, इज अ डॉक्टर। दिव्या का हेयर बैंड, दिव्याज हेयर बैंड। संध्या के भैया, संध्याज ब्रदर। विशाल की दीदी, विशाल सिस्टर। तो किसी जगह पे भी ऐसे अपॉस्ट्रोफी इस तरह से यूज करते हैं। इट्स इजी, you can take care of it. Now move on to the next exercise. Exercise 3, possession, sorry, pronunciation. Pronunciation, बोल के दिखा दो। Pronunciation, pronoun। कुछ लोग बोलेंगे pronunciation, कुछ लोग क्या बोलते हैं? Wrong, very very bad। नहीं बोलना है pronunciation, क्या बोलना है मेरे बच्चे? Pronunciation, pronunciation। Okay, it's very important to learn correct pronunciation. अच्छा, आपकी pronunciation अच्छी नहीं है कि अच्छी है? इसका दोष किस पे जाता है? इसका दोष किस पे जाता है कि आपकी pronunciation अच्छी नहीं है? It was your fault. कितने हम्बल बच्चे हमारे होते हैं, मॉडेस्ट इंडियन बच्चे, जहां गलती ना आ रहे वहां भी मान लेते हैं हमारी गलती है। और एक विदेश में के बच्चे होते हैं अपनी गलती नहीं मानते, और यहाँ तो नहीं भी है तो मान लेते हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं आप। नहीं, आपकी गलती नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने अपना नाम बताया विनिया, तो आप क्या बोलेंगे? विनिया। अगर मैंने अपना नाम बताया विनियो, तो आप क्या बोलेंगे? विनियो। अगर मैंने अपना नाम विनय बोला तो आप क्या बोलेंगे? विनय। मैं जो बोलूंगा आप बोलेंगे, राइट? तो जब आप पहली बार स्कूल गए थे, तो आपके टीचर ने बोला मंकी, तो आप क्या बोले? फिर आपके टीचर ने बोला डंकी, फिर आप क्या बोले? अब वहां पर टीचर ने अगर बोला होता डोंकी, तो आप क्या बोलते? बोलते हैं ना? आप क्या बोलते हैं आज? डंकी की डोंकी? क्या बोलते? डंकी बोलते हैं ना? वो सही नहीं है, क्या होना चाहिए? डोंकी। क्या ये आपकी गलती है कि आप डोंकी नहीं बोलते? प्लीज टेल मी, इज इट योर फॉल्ट वंशिका? कैसे बेटा? यस सर, यस। ओके। मोनू, तुमने क्या कचरा किया है नीचे? कुछ गलत किया है तुमने ना? जाओ, रूपलता मैम बुला रही हैं, बैंड बजेगा तुम्हारा। गो। And Monu, when you're coming back, please bring an extra book from downstairs. Okay? Maybe Anushka Didi knows where it is. Okay? Ask Anushka Didi. Yes, guys. Ha, beta, I'm sorry I couldn't hear your reasoning. Why is it partially your fault, beta?
Okay, beta. Let's see. Donkey and donkey. You didn't care. You heard somebody say donkey, but you didn't care. All right, beta. So, beta, when you speak, and when a Rajasthani person speaks, when a Delhi person speaks, then whose Hindi sounds better? Your Hindi or their Hindi sounds better? Means, do we say, मुझे दो रोटियां चाहिए, or we say, हमको दो रोटी चाहिए? What do we say? मुझे दो रोटियां चाहिए और हमको दो रोटी चाहिए, क्या बोलते हो आप? या दूगो रोटी चाहिए, राइट? तो क्या आपने ये गलती करी है या आपने यही सुना इसलिए सब बोला है? तो इसका मतलब जो भी इंग्लिश बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो, राइट? अगर आप छोटे बच्चे होते, मैं आपको बताता हूं, मैंने नेशनल सिखाया ना बच्चों, नेशनल सॉन्ग बोलने के लिए। नेशनल सॉन्ग को क्या बोलना है? नेशनल सॉन्ग, राइट? घर क्लास में छोटे बच्चे सब बोलने लग गए हैं क्या? बड़े बच्चे अभी भी क्या बोल रहे हैं? वजह क्या है? बड़े बच्चों की आदत ज्यादा पुरानी है, सो दे आर स्ट्रगलिंग विद इट, दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। छोटे बच्चों की कोई आदत नहीं है, कम पुरानी आदत तुरंत चेंज कर लेते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द एनवायरमेंट। इफ योर environment is not good for pronunciation, correct pronunciation, you will not learn correct pronunciation. If my pronunciation is better, it's because I did not listen to people from India and people from Bihar Sharif. I listened to those people who had correct pronunciation. So I learned the right pronunciation just by listening. My pronunciation is good because I listen to those people who have good pronunciation. So if your teacher has correct pronunciation, the students will naturally pronounce words correctly. Nobody can teach them the bad pronunciation if the teacher or the parents, whoever speaks English, has the right pronunciation. जो सुनेंगे वो बोलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे बताइए, आपके पेट में उंगली ऐसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग? और आप हंसने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, बोलते, किसी बोलते मना नहीं करो ना हमको, क्या? गुदगुदी। क्या बोलते हैं? गुदगुदी मत बराओ। कुछ लोग क्या बोलते हैं? करो मत बोलते, क्या बोलते हैं? बराओ। गुदगुदी मत बराओ। आपने बुक में क्या पढ़ा है? गुदगुदी बराना कि गुदगुदी करना? तो पढ़ने का कोई असर हुआ? आप वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जो लोगों से सुने, क्या सुने? गुदगुदी बराना। हमको बहुत गुदगुदी बरता है, तो हमको गुदगुदी बरा रहे हो। आपने कब पढ़ा था बराना किताब में? कभी नहीं। फिर बोलने कैसे लग गए? जो सुनेंगे वो बोलेंगे। तो अगर आप बेहतर बोलना चाहते हैं तो आपको बेहतर सुनना शुरू करना चाहिए। आज से शुरू करेंगे सुनना, साल दो साल के अंदर आप में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है? देयर वॉज अ टाइम, मैं एक इंसिडेंट, एक एनेक्डोट सुनाता हूँ। एनेक्डोट किसको कहते हैं बेटा? एनेक्डोट होता है एक छोटी सी स्टोरी जो आपके साथ घटी हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एनेक्डोट। ठीक है, स्टोरी, एनेक्डोट मीन्स स्टोरी। एनेक्डोट मीन्स सारी स्टोरीज एनेक्डोट नहीं होती, लेकिन एवरी एनेक्डोट इज अ स्टोरी। तो आई वॉज इन क्लास 10th और 11th। ओके, ऐसे 10 और 11 बोलना चाहिए। आई वॉज इन क्लास 10 और 11। आई वॉज इन पटना विद माई कजन। My cousin went to good English medium school. I went to a Sarkari school, Hindi medium school. So my teachers taught me Bhat. Bhat is your name. I learned Bhat is your name. I was on the auto. मैं ऑटो पे बैठा था with my cousin, और मैंने उसको बोला भाट इज इन द बैग। ठीक है, वो मेरे को जो मजाक उड़ाना शुरू किया, ये क्या बोलते हो भाट? मैंने कहा क्या मतलब क्या बोलते हैं? भाट भाट होता है और क्या होता है ना? भाट नहीं होता है। मैंने कहा तो क्या होता है? मैंने कहा वॉट होता है, वॉट। मैंने कहा पागल हो गए, WHAT होता है, WAT नहीं। तो यस यस प्लीज, क्लास छोड़ के बीच बीच में ना जाए, ओके? तो WHAT होता है, भाट होता है। मैंने बोला उसको, पूरा लड़े हम अपने साइड से, क्योंकि हम बचपन से आज तक एक ही चीज सुने थे, क्या? तो हम कैसे वॉट मान जाते? खाली इसलिए कि वो बोल रहा था, वो भी मेरी उम्र का था, हम कैसे मान जाते?
राइट? तो हम लड़े, उसने बोला छोड़, तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं सुन समझता है। उस समय मैं बेवकूफ था, आई फॉट फॉर द रॉन्ग साइड। बाद में मुझे पता चला कि हाँ, तो वो कैसे हो गया, मैंने क्या एक दिन किसी का सुन के सीख लिया, ऐसा नहीं हो पाता। आप एक दिन किसी का सुनेंगे, गौर करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे अपनी आदत की वजह से फिर से वैसे ही जैसे पहले से बोलते आ रहे हैं। लेकिन ये नई वाली आदत बार 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 कान में पड़े तो पुरानी वाली आदत चली जाती है। अब मेरे मुंह से सजेशन निकलता, मैं सजेशन बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? आप लोग क्या बोलते हैं? राइट? मैं भी बोलता था, लेकिन अभी नहीं निकल पाता, अब ज्यादा नेचुरली क्या निकलता है? सजेशन। मैं अब व्हाट बोलता हूँ, भाट नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि पुरानी आदत बन गई है कौन सी? व्हाट की। तो अगर आपको अपनी अच्छी आदतें मेंटेन करनी है, उसको पुरानी आदत बनाइए, अच्छी आदतों को पुरानी आदत बनाइए, और जो खराब आदतें हैं उसको कम पुरानी कर दीजिए। क्या करिए? उसको भूलने की कोशिश करिए, उसको हटाइए दिमाग से। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। चलो, pronunciation. Listen and tick the sentence you hear. I'm going to play an audio file. What am I going to do? I'm going to play an audio file. You will hear some sentences. You will hear some. Okay. What will you hear? You will hear some sentences. Okay. Listen and tick the correct sentence. Tick the sentence you hear. Tick the sentence you hear. जो कान में पड़े उसको टिक कर दो. Tick the sentence you hear. Are you ready? Are you ready? Okay. 1.9. Tape script 1.9. 1, She's from Italy. 2, What's his name? 3, Your English is good. 4, Where's she from? 5, He's a teacher in England. 6, We aren't English. tape script 1.9. 1, Okay. Let's see. Number 1. One more time. I'm playing. Listen carefully. She's from Italy. What did you hear? Yes, She's from Italy or he's from Italy? You heard she's from Italy. Very good. She's from Italy. We are talking about a girl. She's from Italy. It means we are talking about a. जो बोल रहा है वो लड़की हो जरूरी है? आई और यू में जेंडर नहीं होता। आई लड़की भी बोलती है अपने आप को, आई लड़का भी बोलता है, यू लड़के को भी बोलते हैं, यू लड़की को भी बोलते हैं। बट ऐसे जब बोलेंगे तो इधर लड़का बैठा है तो ही, और लड़की बैठी है तो, यानी कि ही और शी में जेंडर होता है, आई और यू में। तो शी इज फ्रॉम इटली, वी आर टॉकिंग अबाउट ए, एक लड़की के बारे में बात कर, और क्या बोल रहे हैं? सपोज वी गो टू अ पार्टी, वहां एक लड़की दिखे हमें, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे ऐसे हाथ करके क्या, और अगर वहां एक आदमी दिखे उसके तरफ हम हाथ करके क्या बोलेंगे? ही इज फ्रॉम इटली। सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट। 2, What's his name? तो आप मुझसे पूछेंगे, अगर वहां लड़का है तो आप क्या पूछेंगे मुझसे? व्हाट्स हिज नेम, और लड़की है तो व्हाट्स हर नेम। ओके। 3, Your English is good. योर इंग्लिश इज गुड। योर इंग्लिश इज, योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अच्छी है। योर इंग्लिश इज गुड।
4. Where's she from? Where is she from? मान लो मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता, मैं कैसे पूछूंगा आपसे? Where is she from? और इन्हीं से पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? Where are you from? अगर मैं आपसे पूछता हूं, आप ही के बारे में अंकिता, मैं क्या पूछूंगा? Where are you from? Right? लेकिन मैं ऋषभ से पूछता हूं, ऋषभ, where is अंकिता from? Where is she from? I hope you understand. अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? Where are you from? लेकिन अंकिता, मैं आपसे इनके बारे में कैसे पूछूंगा? Where is he from? तो he, I, you अगर सही से दिमाग में बैठ जाए कि अपने आप को I बोले, सामने वाले को you और he और she, आधी जंग वहीं पर जीत जाते हैं। उसके बाद चीजें आसान लगेंगी। नेक्स्ट। 5. He's a teacher in England. Repeat. He's a teacher in England. He's a teacher in England. तो बताइए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आप बताइए ऋषभ। He's a teacher in England. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेंशन नहीं किया है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। आप लोग कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे इंग्लिश? हमने तो इतना ही सुना, He's a teacher in England. He's a teacher in England. मतलब वो एक टीचर है, कहाँ? इंग्लैंड में। तो आपने कैसे कंक्लूड किया कि वो इंग्लिश पढ़ाते होंगे? मतलब इंग्लैंड में सारे लोग इंग्लिश ही पढ़ाते हैं सिर्फ? फिर मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स कौन पढ़ाते होंगे वहां? कैसे जवाब दे दिया ऐसे फट से? इसको कहते हैं दिमाग ब्लॉक हो जाना, खुलेगा धीरे धीरे। बहुत अच्छे बेटा। ही इज अ टीचर इन इंग्लैंड। बताइए ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऋषभ कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, ही इज अ टीचर इन इंग्लैंड। इस सेंटेंस में ही जो है वो कहाँ का रहने वाला है? ये भी मेंशन नहीं था, आपको एक बार और बोलना चाहिए था। मैंने तो इतना ही कहा, ही इज अ टीचर इन इंग्लैंड। वो टीचर हैं कहाँ? इंग्लैंड में। तो कैसे गारंटी हो गया कि वो इंग्लैंड के ही होंगे? कैसे गारंटी हो गया? अगर कोई इंसान बिहार में टीचर है तो बिहार का ही है, यूपी का नहीं हो सकता, दिल्ली का नहीं हो सकता, वो आके पढ़ा रहा हो यहाँ पे। तो somebody is a teacher in England. कैसे पता चला वो somebody कहाँ का रहने वाला है? This sentence doesn't give you the information. This sentence only tells you that he is a teacher in England. 6. We aren't English. We aren't English. इसका क्या मतलब ऋषभ? We aren't English. हम लोग? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, very good. We aren't English. It means we are not from England. We aren't English. Are you English? Are you English? Are you from England? No, you're not English. We are not English. Am I English? No. Okay, good job. Next exercise 4, spellings. We are going to listen to some people and you have to write down the spellings. Everybody, those who have the book, those who don't have the book. Do you have a book there, Divyanshu? Do you have a book? Okay, then could you go and sit with him? Yes, he has a book. Aman, can you go downstairs, please? Go downstairs. Go downstairs. Leave the room. Go. 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 You need to relax. Go. Go, beta. Go. No problems. All right. Close the door. Yes. Listen and complete the names and email addresses. Are we ready, guys? Look at the books. Do you have the book there? Okay. Manage, please. All right. Ankita, please manage with Saad's book. Okay. Complete the sentences with the verb to be. Oh, no, sorry. Listen and complete the names and email addresses. Exercise 4. Are you ready? I'm playing. Tape script 1.10. Spelling. 1.
My name's Vanessa. That's Vanessa. Vanessa. 2. My first name's Joseph. That's Joseph. My surname's Bowen. That's Bowen. Joseph Bowen. 3. My name's Katie Matthews. That's Katie, Katie, Matthews, Mattthews. 4. My email address is g.hunt8@yahoo.com. That's g.hunt8@yahoo.com. 5. My email address is zach.yates@gmail.co.uk. That's Zach, Z-A-C, .yates, Y-A-T-E-S, @gmail.co.uk. One more time. Okay, I'm playing it one more time. Tape script 1.10. Spelling. 1. My name's Vanessa. That's Vanessa. My name is Vanessa. That's Vanessa. Vanessa. My name's Vanessa. That's Vanessa. Number 2. Vanessa. 2. My first name's Joseph. My first name is Joseph. That's Joseph. That's Joseph. Joseph. My surname's Bowen. That's Bowen. My surname is Bowen. That's Bowen. Bowen. Joseph Bowen. Joseph Bowen. 3. My name's Katie Matthews. My name's Katie Matthews. Katie. That's Katie, Katie, Matthews, Mattthews. Any problems, anyone? No. Now, please tell me your name with the spelling, just the way you heard it in the audio. You heard it in the audio? Now, try this. Come on. Very good. Nice. Saad. Okay. वंशिका, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन फास्ट जा रही है बाकी की तुलना में. ये एडवांटेज है. कोई नहीं, बाकी लोग गौर से सुनिए और घर पे ऑडियो फाइल सुनिए. व्हेन आई शेयर द ऑडियो फाइल, इसको घर पे भी सुनिए. इतनी बार सुनिए कि आपको लगे कि ये तो मुझे पक्का पता, अगला ये वो बोलने वाला है, ये वर्ड. इतनी बार सुन लीजिए. बताइए अदनान. वेल डन बेटा. फरहान. वेल डन. आप लोग गौर कर रहे हैं, स्पेलिंग बनाने से पहले एक बोलते, माय नेम इज फरहान. दैट्स FAR, ऐसे करके बोल रहे, राइट? बहुत अच्छा कॉपी किया आपने. यस.
Very good. Very nice. Rishabh. Okay. Very nice. My name's Vinay. That's Vinay. Okay? ये स्पेलिंग बताने के लिए बोल देते हैं that's, जो कि ऐसा है ना? Next. Email address. 4. My email address is g.hunt8@yahoo.com. g.hunt at That's g. dot H-U-N-T Hunt 8 at yahoo.com. at yahoo.com. 5. My email address is zach.yates Zach.Yates. @gmail.co.uk. Okay, that's Zach, Zach. Z-A-C Y. dot Yates, Y. Y-A-T-E-S @gmail.co.uk. At बोलना है कि at the rate बोलना है? पक्का हो गया ना? पूरा इंडिया at the rate बोलेगा. आप क्या बोलोगे? Very good. A lot of people say at the rate. Educated people also say at the rate. और at the rate मतलब की दर से. At the rate का मतलब क्या होता है? मैथ्स के क्वेश्चन में at the rate आना चाहिए. कहाँ आना चाहिए at the rate? मैथ्स के क्वेश्चन में. और यहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ क्या आ रहा है? at. एड्रेस, आपने कभी भी एड्रेस लिखा तो क्या लिखते हैं? एट लिखते हैं ना. ये खाली सिंबल रहता है तो लोग क्या बोलने लग जाते हैं? चलो कोई नहीं. Let's move on. Talking about you. The next exercise, 5. Talking about you. अपने बारे में बात करना. Talking about you. Read the instructions. Instructions पढ़िए. Make true sentences. कैसे sentences? True मतलब क्या होता है? सच. बहुत बढ़िया. सच होता है. True मतलब सच. Make true sentences about you with the verb to be. मैं बोलूं एक लाइन? My name is Rahul Gandhi. This sentence is correct or incorrect? It is totally correct. My name is Rahul Gandhi. This sentence is correct. Is this sentence true? It is not true, but it is correct. It is correct. My name is Rahul Gandhi is a correct sentence, but not true. तो आपको क्या करना है? करेक्ट खाली करना है कि करेक्ट एंड ट्रू? ऑलराइट, सुनना. माय नेम इज नॉट राहुल गांधी. अब क्या हो गया? करेक्ट भी है और ट्रू भी है. माय नेम इज नॉट राहुल गांधी. गॉट इट? तो यू आर गोइंग टू राइट ट्रू सेंटेंसेस. क्या लिखेंगे आप? ट्रू सेंटेंसेस. गो अहेड एवरीबॉडी. Number 1, I am not at home. Is that true? सच है ना? लेकिन नूर क्या बोलेंगे? I am at home. नूर बोलेंगे I'm at home because वो घर से क्लास कर रहे हैं. तो नूर will say I am at home. Okay, carry on, people. Number 2. Number 2, everybody. We are in class. We are in class. We are in class. Are we in class? Yes, we are in class. Come on, everybody. Number 3. We aren't in a cafe. Is this a cafe? This is not a cafe.
We aren't in a cafe. Number 4. It isn't Monday today. It isn't Monday today. Is it Monday today? No, it isn't Monday today. It is Tuesday today. Number 5. Teacher's name isn't Richard. ये कैसा किससे बात कर रही हो? खुद से या अपने मुझसे? आपसे सर। नहीं, ऐसे तो नहीं करता कोई दूसरे से बात। जिस तरह से कर रही लग रहा खुद से कर रही हो। Come on, number 5. Kehkashan, give me your sentence. My teacher name is आप टीचर नेम बोल रहे हो। टीचर का नाम को क्या बोलना पड़ेगा? टीचर्स नेम। टीचर नेम नहीं बोल सकते, मैंने शुरू में ही पढ़ाया अभी। ऋषभ मदर नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा? तो टीचर नेम, टीचर्स नेम, टीचर का नाम। कुछ लोग जब आप ऐसा बोलोगे, कुछ लोग, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप जर्मनी में होते, चाइना में होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि वहां के लोगों को या तो इंग्लिश सीखना है या तो नहीं सीखना है। फालतू में वो आपके साथ पंगा नहीं लेंगे। यहाँ क्या है, इंडिया में आपसे हर कोई बात करेगा इंग्लिश के बारे में। डॉक्टर साहब क्या जाएंगे ना, वो भी टिप्स देंगे आपको इंग्लिश सीखने के। अरे भाई तुम इलाज करो, डॉक्टर हो, नहीं, वो आपको टिप्स देंगे क्या सीखने के। आपके मौसा जी, ठीक है, आप उनसे बात करोगे, वो आपको देंगे टिप्स क्या, इंग्लिश सीखने के। जबकि मौसा जी खुद इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन वो आपको जरूर टिप देंगे कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश। इंडिया में सब कोई इंग्लिश बोलना जानता है, बोलना सिखाता है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से मैंने क्या बताया कि कुछ लोग कहेंगे प्लूरल थोड़ी है जो तुम टीचर्स बोल रहे हो, क्योंकि उनको लगता है टीचर्स क्या है, सिर्फ प्लूरल। प्लूरल होता है उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। पेन का प्लूरल, टीचर का प्लूरल, और ये पोजेशन वाला भी टीचर्स ही वो बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन एक लिखा जाता है टीचर में सिर्फ एस और एक टीचर में अपॉस्ट्रोफी एस। इसलिए ध्यान दीजिए। कहकशा, आपने कैसे बोला माय टीचर नेम, कैसे बोला आपने? सर माय टीचर्स बोल रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेना, सुन लेना फिर से, ठीक है बेटा। माय टीचर्स नेम, आगे बोलिए कहकशा। माय टीचर्स नेम आर क्या बोलना चाह रहे ब्लैंक में, ब्लैंक स्पेस में, कहकशा? सच बोलिए, आपको आपके होने वाली सास की कसम। कहकशा? तब तो झूठी बोलेंगे सर। तब तो झूठी बोलेंगी। ओ माय, ये चाहती है कि इनकी सास निकल जाए, गाड़ी पकड़ ले। कहकशा, इतनी दुश्मनी उस औरत से जिसने उस लड़के को जन्म दिया जो तुम्हारा शौहर होगा। ओ माय गुडनेस, क्यों करोगी तुम ऐसा? कहकशा, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी हमेशा के लिए, याद रखना। तुम्हारी शादी हो जाए, तुम शादी में इनवाइट तो करोगी, ये वाला बिट काट के इसकी सास को दिखाएंगे, हैं बेटा फंसे तुम चंगुल में। कहकशा? Shama, what would you like to say? Number 5. My mother's name, My sorry, teacher, my my teacher's teacher's name. name is Richard. कौन से टीचर का नाम रिचर्ड है आपके भाई? No, isn't Richard. Yes, that's the correct true sentence, right? You have to write a true sentence. My teacher's name isn't Richard. Richard, Richard. right? Yeah. What have you written, Farhan? Is or isn't? Is लिखा होगा इसने? स्माइल बता रही है। बताओ, ट्रू बोलना हम लोग को आता ही नहीं है, हम सिर्फ करेक्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं। सच बोल लेते हैं भाई। अगर हमने कहा आई एम अ गर्ल, ट्रू है क्या? नहीं, ट्रू कर देते, ट्रू कर दीजिए। आई एम नॉट अ गर्ल, हो गया ट्रू। ओके, इजी। माई टीचर्स नेम इजंट रिचर्ड। ये क्वेश्चंस आसान है, लेकिन आपके दिमाग को झकझोरते हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ी है इज लगा देने की फट से, है ना। देखिए नंबर 6।
तो आप इज लिखेंगे। जैसे अभी हमारे नूर ने कहा आई एम एट होम, हम लोगों ने नहीं कहा आई एम एट होम, हम लोगों ने कहा आई एम नॉट एट होम। नूर ने क्या कहा? तो सच है तो सच है। नंबर 6 एवरीबॉडी। My mother and father. माई मदर एंड फादर दोनों के दोनों काम पे गए हुए हैं, तो aren't at work। सच क्या है? माई मदर एंड फादर aren't at work, only my father is at work, only my mother is at work। अगर दोनों के दोनों काम पे गए तो आप क्या बोलेंगे? माई मदर एंड फादर आर एट वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 7 एवरीबॉडी, नंबर 7। I'm not married. पक्का? पक्का? तमाम। नंबर 7, नंबर 7 कहकशां। Number 7 कहकशां। I think कहकशां is married. That's what she was saying. तब तक कसम खा ही लेंगे, झूठी बोलेंगे फिर। नूर, I am not married. you're not married. Ankita, you're married. Okay. And you guys? Not married. You're not married. Saad? Pakka? Secretly married? Anybody? Secretly? Akansha? Pakka? You're not married? 100% sure? चलो, I trust you. ठीक है। Next बेटा, number 8. My grandmother isn't 75 years. सब लोग isn't naturally बोलेंगे। किसकी दादी या नानी 75 साल की एग्जैक्ट? 74 की भी है तो isn't, 76 की भी है तो isn't, मतलब सारे नंबर्स हो तो isn't, सिर्फ 75 है तो is। यही समझ होनी चाहिए। क्या लिखा था फरहान? is लिख दिया था, isn't। My grandmother isn't, मान लो किसी की है ही नहीं ग्रैंडमदर, तो वो क्या लिखेगा? मैं बताता हूं। My grandmother isn't 75 years old. Actually, she is no more. Right? आगे लाइन में क्लैरिफिकेशन देंगे ना। आपने सेंटेंस तो कर दिया, My grandmother isn't 75 years old. Actually, she is no more. She is no more. Any problems? Now, read your sentences to your partner. Read your sentences to your partner. मतलब read your sentences to your partner. मतलब अपने पार्टनर को सेंटेंसेस पढ़ के सुनाना। का इंग्लिश है वहां पे लिखा हुआ, तो आपने कैसे सुनाना बोला पता है? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो हिंदी फिट हो रही थी ना। अब मुझे एक मैसेज आया हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। हेलो सर, एक कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए 6 महीने हैं सर, कहाँ से शुरू करना होगा और इसका प्लान क्या होगा, क्या होना चाहिए सर? प्लीज गिव मी अ बेटर प्लान, थैंक यू सर, प्लीज रिप्लाई। ओके, मैंने जवाब दिया। योर ट्रांसलेशन स्किल्स आर एज गुड एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स उतनी ही अच्छी होगी जितनी आपकी उस लैंग्वेज की समझ। Basically, you need to learn and improve your English so that you can translate it into Hindi more accurately. आपको अपनी इंग्लिश बेहतर करनी होगी ताकि इंग्लिश पढ़ के आप समझ सके और फिर उसको हिंदी में व्यक्त कर सकें। अगर आपको समझ नहीं आई इंग्लिश तो आप कैसे व्यक्त करेंगे हिंदी में? तो आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे बच्चों कि जितने लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखा है बचपन में कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, दे वर बीइंग सिली, वो सिली हो रहे थे, उनको कोई समझा नहीं पाया बचपन में। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी, मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने इंग्लिश सीखने के लिए करते हैं लोग, बट दे नेवर फील दैट कॉन्फिडेंस अबाउट देयर इंग्लिश। व्हाई इज दैट? देयर मेथड्स आर फॉल्टी, देयर मेथड्स आर नॉट वेरी गुड।
आपको अगर इंग्लिश सही करनी है तो आप इंग्लिश भाषा के साथ रहिए। आप मेरे साथ 1 महीने हैं और आपके जहन में आंख बंद करते होंगे, सोते होंगे, बाथरूम में जाते होंगे तो एक आध इंग्लिश वर्ड, लो एंड बिहोल्ड, अमन को याद रहने लग गया था। राइट अमन? लो एंड बिहोल्ड, ही इज क्लास 5 स्टूडेंट। मैंने उसको एक कहानी पढ़ाई थी, उसमें एक फ्रेज है लो एंड बिहोल्ड। तो उसके जहन में वो बार बार आ रहा है, सर जब बोल रहे हैं ना लो एंड बिहोल्ड हो जा रहा है सर, मन में आ रहा है। ऐसे इंग्लिश के संपर्क में रहिए, धीरे धीरे आप वो लैंग्वेज बोलने लग जाएंगे। किसी को जर्मन बोलना है, चाइनीज बोलना है, क्या करेगा वो भाई? उस लैंग्वेज के टच में रहेगा। हम लोग इंग्लिश को दूर रखते हैं, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश, इस हिंदी का ये इंग्लिश, इस हिंदी का वो इंग्लिश। अंग्रेजों को हिंदी आती है, तो आप हिंदी से इंग्लिश क्यों सीख रहे? आप ये क्यों नहीं सीखते वो क्या बोलते हैं? किसी ने आपको कह दिया हैव अ गुड डे, तो क्या बोला? पास में अच्छा दिन रखना। किसी ने आपको कहा हैव अ गुड डे, क्या कहा? हैव अ गुड डे। उसने क्या कहा आपको? हैव मतलब पास में होना, गुड मतलब अच्छा, दिन मतलब दिन, डे मतलब दिन, तो हो गया पास में अच्छा दिन होना। यही बोला उसने। क्या बोला उसने? हैव अ गुड डे। उसने आपको विश, गो, आई होप यू हैव अ, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि मैं मना रहा हूं कि आपका दिन अच्छा हो। हैव अ गुड डे। तो आप शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करते, आपको समझ आनी चाहिए। अगर किसी इंसान की, 4 साल के बच्चे की इंग्लिश अच्छी है और हिंदी भी, तो आपने उसको इंग्लिश में कुछ बोला तो वो जाके किसी को हिंदी में बता नहीं सकता क्या बोला मैंने, तो उसको समझ में तो आ गई बात। इसलिए आप कभी ट्रांसलेशन नहीं सीखते, आप एक्चुअली क्या सीखते हैं? वो भाषा जिस भाषा से आपको ट्रांसलेट करना है। हिंदी मदर टंग है आपकी, आपको अगर इंग्लिश से हिंदी करना है, हिंदी से इंग्लिश करना है, आपको सीखना क्या होगा? इंग्लिश। अपने आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जब आप लोग की इंग्लिश बेहतर हो जाएगी तो क्या आप अपने दादाजी को मेरी बोली हुई बात बता नहीं पाएंगे हिंदी में? बता देंगे ना। आपको मैं इंग्लिश में कुछ बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। फिर आपके दादाजी को इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको हिंदी में करके नहीं बताएंगे। तो ट्रांसलेशन सिखा मैं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्या सिखा रहा हूं? इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन सिखाने की चीज अभी बिल्कुल नहीं है। चलिए, रीड योर सेंटेंसेस टू योर पार्टनर। रीड योर सेंटेंसेस टू योर, मतलब अपने सेंटेंसेस अपने पार्टनर को पढ़ के, अगर मैं कहूं ये चिट्ठी मुझे पढ़ के सुनाओ तो कैसे बोलूंगा? रीड दिस लेटर टू मी। रीड दिस लेटर टू मी। और हिंदी में क्या बोला? इस लेटर को पढ़ के मुझे, रीड दिस लेटर टू मी। तो अगर आपके पास कोई ट्रांसलेशन का ऐसा मारा है जो बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन के चक्कर में रहता है, तो उसको ऐसे सेंटेंसेस पूछ के उसके दिमाग को खोलिए कि देखो तुम गलत सोचते हो। अगर हिंदी में बोलना है पढ़ के सुनाओ ये लेटर, तो वो ढूंढने जाएगा सुनाना का इंग्लिश। हाँ कि ना? कि सुनाना का इंग्लिश क्या होता है, सुनाना का इंग्लिश क्या होता है। जरूरत ही नहीं है। क्या बोलना है सिर्फ? रीड दिस लेटर टू मी। अरे मेरी आंखें थोड़ी दिख नहीं रही यार, जैसे मैसेज आप पढ़ के सुना दोगे? कैन यू प्लीज रीड दिस मैसेज टू टू मी? रीड दिस मैसेज टू योर मदर, मतलब ये मैसेज पढ़ के अपनी माँ को सुना दो। रीड योर सेंटेंसेस टू योर, टू कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। रीड योर सेंटेंसेस टू योर, कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रीड योर सेंटेंसेस टू योर पार्टनर, द 8 सेंटेंसेस, वही 8 सेंटेंसेस, कम ऑन, रीड योर सेंटेंसेस टू योर पार्टनर। दिव्यांशु, read your sentences to your partner. शमा, कहकशा, नूर, मान लो कि तुम्हारा पार्टनर वही है। रीड योर सेंटेंसेस टू योर पार्टनर, ओके?
Guys, I'm sending the homework in the group, guys. What is the homework? Write about you and your life. जो सिखाया मैंने जितना भी उतना ही अपने बारे में बताओ. You can do it just like Rick Wilson. Hello, my name is Rick Wilson. I'm a student. I'm 19 years old. I live in London. I have a brother. I have a sister. My sister's name is Rosie. She is married. My brother's name is Edward. He's 16 years old. He's at school. ऐसे उसने बताया ना? आप भी बता सकते हैं? मैं बताऊं? My name is Vinay. I'm a teacher. I live in Bihar Sharif. I teach English. I am married. I have a daughter. My wife is also a teacher. My daughter is a student. She wants to clear IIT. I live in a house in Bihar Sharif, not with my wife and my daughter only, but also with my brother, his wife, his son, my mother, my sister, and her 2 children. We are a joint family. Okay. और जितनी बातें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं ना? So what's your homework? Write about you and your family. Where are you going? Where are you going, Divya? Where are you going? Sit. You guys got your homework? Now, I am going to share with you something more. Go to the next page, everybody. Oh. Turn over the page one more time, Vanshika. Turn over the page one more time. Oh, no. That page is blank. Oh, okay. I'm sharing this page in the group, by the way, okay? Because there was something supposed to be there. Yeah, that's the page. Okay, everybody. You know London? Where is London? London is in England, right? Where is London? It's in England, right? Is it a famous city? Very famous. Now everybody knows London. Okay, look at the 2 photos of London. Do you know the names of these places? Now, one is called the Tower Bridge. Tower Bridge. And no, not Eiffel Tower. No. Tower Bridge. Tower Bridge. And the other is called Big Ben. The other is called Big Ben. Do you see a big clock? That is Big Ben. It is called Big Ben. Yeah. Okay. There are a lot of famous places in London. A lot of tourists go to London. A lot of tourists go to London every year. London is very popular with tourists. Tourists love going to London. Do you know any other famous places in London? Have you heard about a museum called Madame Tussauds Museum? Have you heard of it? No? Nobody? You've never heard of Madame Tussauds? It's a very interesting museum. What is so interesting about it? Hello, Shubhankar, you're not paying attention. What is special about this Madame Tussauds Museum? In this museum, you have statues of famous people. And these statues are made of wax. What is wax? Mom. Yes, wax means mom. Mombatti, you know, candles? Candles are also made of wax. So they use wax to make statues. Life-size statues. Kaisa statues? Life-size statues. What is life size? जितना होता है ना आदमी वैसा. Not small, not too big. Life size statues. They look like real people, those statues.
In this museum, there are people from all over the world, famous people, statues of famous people. Narendra Modi's statue is there. Shah Rukh Khan's statue is there. Sachin Tendulkar's statue is there. Donald Trump's statue is there. Xi Jinping's statue is there. Every famous person you think of, their statue is in that museum. And where is this museum? In London, Madame Tussauds. There are Madame Tussauds museum in other parts as well of the world, but the first Madame Tussauds museum was in London. It's a very interesting place to visit. If I ever go to London, I would like to visit this museum. Would you like to visit the museum too? I would love it. I would love to see people, the statues which look like people, real, life-size statues. What size? अगर मेरी लाइफ साइज स्टैचू बनेगी तो जितना मैं लंबा हूं, जितना चौड़ा हूं, वैसा ही एकदम देखने में हूबहू बहु मेरे जैसे, लाइफ साइज। इतना सा बना दिया तो दैट्स नॉट लाइफ साइज। 10 feet tall, not life size. Okay? Size. हाँ, LIFE, life size, LIFE, life, लाइफ साइज मैं बोल रहा हूं। लाइफ साइज स्टैचू मतलब कैसा स्टैचूज? जो एकदम आपके जितने कद है वैसे ही रहे, लाइफ साइज स्टैचूज। गॉट इट? ओके। सो गाय, हाँ, इज देयर प्रॉब्लम? लाइफ की हिंदी जिंदगी होती है। यू आर इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ नाउ। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इट्स माई लाइफ, आई विल लिव द वे आई वॉन्ट। लाइफ की हिंदी सब जानते हैं, लेकिन मैं लाइफ थोड़ी पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? लाइफ साइज। अच्छा मुझे बताना, तुम लाइफ जानते थे ना? तुम साइज जानते थे ना? कभी तुमने लाइफ साइज बोला है साथ में? और कौन कहता है तुम्हें वोकैबुलरी नहीं पता, वोकैबुलरी नहीं आती, नए वर्ड सीखना पड़ेगा? किसने कहा? मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, कितने नए वर्ड्स यूज कर रहा हूं बताओ? बहुत कम। ज्यादातर वर्ड्स दैट आई यूज आर ऑलरेडी नोन टू यू। आप जानते हैं ना उन वर्ड्स को जो मैं बोलता हूं। इससे क्या पता चला? इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा वोकैबुलरी चाहिए। जो भी ये लाइन बोलते हैं वो लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं कब बोल रहा हूं आपकी वोकैबुलरी पुअर है? मैंने कभी बोला? मैं बस आपसे वो उस भाषा में बात करता हूं क्योंकि आपको पता है वो वर्ड्स, बट आपको उस वर्ड के यूजेस नहीं पता। जैसे लाइफ तो आप जानते थे, साइज भी जानते थे, लेकिन आपने कभी लाइफ साइज नहीं बोला था। गॉट इट? तो आप जो वर्ड्स जानते हैं ना, 3-4 हजार, उन वर्ड से अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है। यू ऑलरेडी नो दोज वर्ड्स। आप मुझे बताइए, फ्रेंच में कितने वर्ड्स जानते हो आप? 0। जर्मन में 0। रशियन में 0। इंग्लिश में 1000, 2000, 2500, 3000, 4000। फिर भी लोग क्या कहते हैं? माई वोकैबुलरी इज पुअर। नो, योर मेथड्स आर पुअर। क्या वोकैबुलरी का मेथड, क्या मामला है? आपको बोल दिया गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, बात खत्म। ऐसे रट्टा मारोगे, आपकी वोकैबुलरी कभी इंप्रूव नहीं होगी। मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, सुनकर आश्चर्य लगेगा। आप सारे बच्चे मार खाए हैं बचपन में वोकैबुलरी याद नहीं करने के लिए। सही है? सही है? सही है? अदिति को कभी एक थप्पड़ नहीं पड़ा बचपन से आज तक। किसके लिए? वोकैबुलरी याद करने के लिए। उसके जैसी वोकैबुलरी बिहार में शायद ही किसी के पास हो। ये कैसे? मार खा खा के इतनी सा, और बिना मार खाए इतना। मेथड्स आर डिफरेंट। ठीक है? आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, कभी मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा नहीं 15 वर्ड्स 20 वर्ड याद करके आइए, कभी नहीं। आप मेरे साथ 2 साल 3 साल भी पढ़ेंगे ना, मैं कभी नहीं लिखवाऊंगा। तब तो मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। आपकी वोकैबुलरी जितनी ज्यादा इंप्रूव यहां होने वाली है, उतनी कभी नहीं हुई है, क्योंकि हम आपको एक्चुअल यूजेस सिखा देंगे वर्ड्स के। इसलिए जब ये पूछ रहे थे लाइफ मतलब, तो मैंने बोला लाइफ मतलब लाइफ जो जानते हैं आप। लाइफ मतलब जिंदगी, लाइफ साइज। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया इस वर्ड को, कि आपने कभी बोला था लाइफ साइज? नहीं।
लेकिन मैंने एक सेकंड बोला और समझने के लिए मुश्किल थी क्या? अब आप बताओ, आपको क्यों नहीं पता था ये वर्ड? किसी ने आपके सामने ये वर्ड पहले यूज नहीं किया। अब आपको समझ में आया कि विनय सर क्यों आपकी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं? Because I use a lot of words that will be very, very easy for you to understand and learn. That's my strength. Got it? Okay. Are you talking to me, Kakasha, or talking to somebody else? Kakasha. Kakasha. I want you to be more attentive, just like Shama. This is the condition to be in the online class. ऑनलाइन क्लास इज नॉट लाइक अदर ऑनलाइन क्लासेस जहां पर कैमरा बंद करके मस्ती कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. यू हैव टू बी फोकस जस्ट लाइक दीज स्टूडेंट्स. उनके पास हमेशा माइक का फ्रीडम है, जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं. तो ऑनलाइन रहा ही नहीं है. ऑनलाइन तो वो होता है जिसमें टीचर बोलते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते. ज्यादा से ज्यादा होगा कि आप परमिशन मांगेंगे, टेक्स्ट करेंगे, परमिशन मांगेंगे, वो माइक अनम्यूट करे तब आप कुछ बोले. राइट? यहाँ तो वो बात कर सकते हैं मुझसे जब चाहे तब. इसलिए पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करिए कहकशा. All right, guys, I will ask you to do exercise 2. Look at exercise 2. There are some words in the box. Can you see? Read the words. Big, small, nice, beautiful, expensive, interesting, difficult, easy, friendly, cold, sunny. Do you know these words? Any words are new for you? Sunny. Sunny day. Sunny. It's a sunny day. The weather is sunny. The day is sunny. Okay? It means the sun is out. Okay? If the sun is behind the clouds, then it is not sunny. Tell me, the first week of January, is it sunny? The No. first week of January. Imagine, the first week of January. Normally it is not sunny. But the month of June, very sunny. Sunny Very and hot. sunny. Right? Very hot. Okay. Fine. Any other words that you don't understand? Expensive means you understand, everyone? It costs a lot of money. Expensive. Okay. Interesting means Vanessa. Right? Okay. Good one. Okay. Let's do exercise 2. There are 4 sentences. You have to complete these sentences. With these words, use these words from the box and complete the sentence. जो आपको लगे, जो आपका मन करे. Think in your head. London is, London isn't, London is a, London isn't a, London is an, London isn't an, ... city. आपको जो मनाए सोचो. Think in your head. No need to write, Farhan. Think first. Think, everybody. Use the words from the box. Don't write only. Think, read and think. What do you think about number 1? What do you think? What's your opinion? Number 1. London is a big city. London is a beautiful city. London isn't. जो आपकी opinion है बताओ भाई. London is an interesting city. London is an interesting city. Okay. बोलो चुप क्यों हो? जो बनाए बोलो. Freedom. Number 1. London isn't London big. is a big city. London is a big city. Shama says London is a big city. Big Yes, it city. is true, Shama. London is a big city. London is a cold city. London is a cold city. All right.
London is an Capital. expensive city. Yes, that's right, Shubhankar. London is an expensive city. Yes. If you have 1,000 rupees, it's nothing in London. 1,000 rupees is nothing in London. You will not get a meal in 1,000 rupees. For 1,000 rupees, you can't buy a good meal. एक अच्छा खाना नहीं खरीद सकते एक टाइम का. You can't buy a good meal for 1,000 rupees. Okay, you'll have to spend more. You can't buy a pair of shoes for 1,000 rupees. You have to spend more. London is an expensive city. Yes. Next. Number 2. The people are... Okay. Really? You think so? You think so? The people are friendly. Okay. All right. Go on. The people aren't nice. Adnan says the people aren't nice. People aren't nice. Log अच्छे नहीं हैं. The people aren't nice. Rishabh beta, what do you think? What do you think? People are beautiful. You can share the book. Okay. What's your opinion, Rishabh? The people are friendly. The people are... कहकशा थोड़ा बेहतर कर बेटा. पहले तो शमा दीदी की तरह कैमरे पे आ. हमेशा एकदम सामने से चेहरा पूरा दिखना चाहिए मुझे जब तुम बात करते हो. ना दिस एंगल इज नॉट गुड. कहकशा शमा दीदी इज एंगल. देखो शमा दीदी का एंगल. पासपोर्ट साइज फोटो जैसा चेहरा आना चाहिए. कहकशा ठीक है. प्लीज डू समथिंग अबाउट इट बेटा. गो ऑन ऋषभ. The people are interesting. Okay. He thinks the people are interesting. Okay. Number 3, everybody. The weather isn't sunny. Okay. Opinions. आप लंदन गए नहीं, आपको जो जानकारी है, जो opinion हो बताओ. कोई problem नहीं. Okay. The weather is cold. Okay. All right. Number 4. English is easy language. No. an easy language. उठा रहा है इंग्लिश और फिर भी is an easy language. ये तो बढ़िया है. 10 साल से पटखनी खा रहे इंग्लिश से और फिर भी क्या बोल रहे हैं? English is an easy language. Wow, confidence अजब गजब है आपका. Guys, I'm going to share an audio file with you. मैं एक audio file share कर रहा हूँ. जितनी बार सुन सकते हो सुनो. I'm putting it in the group, okay? Just listen to the audio as many times as you want. I've shared it. No homework other than that. सिर्फ क्या करना है? And you have to write about you and your life, right? जो मैंने बताया वैसे कुछ लिखना है. और ये ऑडियो फाइल के साथ क्या करोगे? Just listen. एक बार, 2 बार, as many times as you want. मजा जब तक आ रहा है च्युइंगम की तरह. जब तक मजा आ रहा है चबाते रहो. जब मजा ना एकदम बंद हो जाए तो फेंक दो. वैसे ही चबाते रहो, सुनते रहो. I mean, okay? Keep listening to the audio. I'll see you guys. Bye. Take care. We are wrapping up now. Bye, sir. I didn't send the recording. I will send the recording today. Okay? Yes. Bye-bye, everyone. Bye, sir. Bye-bye.